Hello dear students, good morning, Jai Shri Krishna. So today we are going to discuss the chemical composition of nucleic acid, right? In our last lecture, we discussed about the protein synthesis, peptide linkages, what is dipeptide, tripeptide, polypeptide, how protein will be formed by using peptide bonds. And we started the topic nucleic acid. We discussed about the initial informations about the nucleic acid. But today we are going to discuss the chemical composition of nucleic acid. It means which type of species or which type of moieties are available in nucleic acid. Actually, my dear students, nucleic acid is one type of polymeric species, polymeric compound. Ready? And there are two types of nucleic acids are possible. First one is DNA, and second one is RNA. D means deoxyribonucleic acid and RNA means ribonucleic acid. So first of all, what kind of species are present in nucleic acid? It means कि कौन से स्पीसीज, कौन से मॉलिक्यूल्स डीएनए और आरएनए टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए, फॉर्म करने के लिए उसमें अवेलेबल होते हैं. तो मेनली बच्चों याद रखना, कोई भी डीएनए बनाना हो या तो आरएनए बनाना हो, मतलब न्यूक्लिक एसिड बनाना हो, तो आपको न्यूक्लिक एसिड को बनाना होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड. पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड बनता है. तो आपको क्वेश्चन होगा व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड. Always polynucleotide is formed by polynucleoside. Actually, polynucleotide, it means so many nucleotides are joined together by phosphodiester bond and forms polynucleotide. But what is nucleotide? Nucleotide is formed by nucleoside, and nucleoside is formed by the reaction between pentose sugar and nitrogen base. So first of all, we have to know about the what kind of compositions are present in DNA और RNA के न्यूक्लिक एसिड. सो बच्चों स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कोई भी आप न्यूक्लिक एसिड देख लो, तो उसमें मेन फंडामेंटल जो पार्टिकल होगा पेंटोज शुगर. और वो पेंटोज शुगर कौन सा होगा? रिबोज शुगर. Because ribose sugar is aldopentose sugar. का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CHO, CH, OH, CH, OH, CH, OH, CH2, OH. ये हो गया हमारा रिबोज शुगर. It is a ribose sugar. It is a aldopentose. Why it is aldopentose? Because यहाँ पे एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है. और दूसरी बात, 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन दिस शुगर, इन विच 5 कार्बन्स आर प्रेजेंट. सो इट इज नोन एज पेंटोज शुगर. बट एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, देन इट इज नोन एज aldopentose sugar. So ribose is aldopentose sugar. Now this one is the first of all, this is the first carbon, this one is second carbon, third one, fourth one and fifth one. Total 5 carbons are present. So in the structure of RNA, one ribose sugar is present. But in DNA, if remove oxygen from the second position, then it will become deoxyribose. D means remove. Oxygen removed from the second position of ribose sugar is known as deoxyribose. So first of all, we have to form cyclic sugar. So it is a ribose sugar, acyclic form. It means open chain structure. But if you want to draw the cyclic structure, तो यहाँ पे आपके पास बच्चों 1 2 3 4 5 कार्बन है, जिनमें से जैसे आप ग्लूकोज में हेमीएसिटाइल स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते थे, वैसे ही अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करना चाहते हो, ये ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा ये जो कार्बन है उसके साथ, और पायरेनो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देगा. कैसे करेगा वो देखते हैं. सबसे पहले 5 कार्बन वाले ये कार्बोहाइड्रेट में टोटल 4 कार्बन वाला एक साइकिल बनेगा, जिसमें 5वां जो एटम है वो होगा ऑक्सीजन. इट इज अ हेटेरोसाइक्लिक स्पीसीज. रेडी. सो 5 मेंबर्ड रिंग in which first carbon is
suppose anomeric carbon, it is a anomeric carbon. Why? Because in open chain structure of this sugar, ribose sugar, first carbon is aldehyde, carbonyl carbon, but that carbonyl carbon is known as anomeric carbon, anomeric carbon in in cyclic structure. So यहाँ पे बच्चों एक याद रखना, डीएनए और आरएनए आप कोई भी ले लो, यहाँ पे जो इसके कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब डीएनए और आरएनए को सिंथेसाइज करना होगा आपको, तो उसके स्ट्रक्चर में जो आपको शुगर देखने को मिलेगा वो बीटा बीटा फॉर्म वाला होगा. इट मीन्स in DNA or RNA, ribose sugar is present in form of beta D sugar. D means capital D. Ready? बीटा डी शुगर, रिबोस बीटा डी फॉर्म में होगा. तो सबसे पहले मैं देखना होगा बीटा डी कैसे होगा. तो यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रक्चर के बेस पे आप ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हो. ये पहला वाला स्ट्रक्चर हो गया, उसके ऑक्सीजन के साथ यहाँ का हाइड्रोजन आ जाएगा. तो आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप अरेंज करते हैं. चलिए यहाँ पे कार्बन पे जाते हैं और एनोमेरिक कार्बन पे यहाँ पे हमें दो एटम को यहाँ पे सब जगह पे अरेंज करना होगा फंक्शन ग्रुप. देखिए, बीटा होने की वजह से यहाँ पे आपको OH लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा H. ये हो गया हमारा एनोमेरिक कार्बन, बीटा होने की वजह से. बाद में ये देखिए, यहाँ पे ऊपर की साइड H है, नीचे की साइड OH, H OH, यहाँ पे CH2OH लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा H. इनके बेस पे आप यहाँ पे देखिए, राइट साइड में OH हो तो आप ये जो हावर्थ-हर्स्ट प्रोजेक्शन इसे बोलते हैं, हावर्थ-हर्स्ट प्रोजेक्शन, इसमें आपको ये जो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, वहां पे आपको OH नीचे की ओर लिखना होगा बॉटम साइड. रेडी? इन फिशर projection, if OH function group is present in right side, then Haworth-Hurst projection, you have to write that OH function group on the bottom side of the structure. It means below the. Okay, तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा बीटा डी रिबोस. बीटा डी रिबोस क्यों भाई? डी क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाला किराल कार्बन है उस पे आपको OH राइट साइड देखने को मिल रहा है, तो ये हो जाएगा कैपिटल डी. व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा? बिकॉज इन हावर्थ-हर्स्ट प्रोजेक्शन इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ रिबोस, OH फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन अबव द प्लान, नॉट बिलो द प्लान. सॉरी, अबव द प्लान. रेडी? तो OH ऊपर की ओर आ जाएगा, H नीचे की ओर आ जाएगा. ये OH को आप ठीक से ड्रॉ करना होगा आपको. बीटा डी रिबोस लिखना होगा, H यहाँ पे, OH नीचे की, और ये स्ट्रक्चर के बेस पे आप ड्रॉ कर सकते हो ये वाला स्ट्रक्चर. ठीक है, चलो, तो ये हो गया शुगर. सबसे पहली बात, डीएनए और आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड में एक होगा हमारा पेंटोज शुगर. तो चलिए, एक पेंटोज शुगर हमने ड्रॉ कर दिया. तो एक हो गया पेंटोज शुगर. दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा नाइट्रोजन बेस. एक्चुअली टोटल 5 टाइप्स के नाइट्रोजन बेस है. एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, जिसमें डीएनए में आपको देखने को मिलेंगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, एंड आरएनए में आपको देखने को मिलेंगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना. ये 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस है और उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होगा वो होगा प्यूरिन बेस या तो पिरिमिडिन बेस. क्या होगा हम आगे देखेंगे. सबसे पहले जब ये पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड. अब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ मिलकर, क्या H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के साथ आप रिएक्ट करवाते हो तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड. अब ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ मिलकर बन जाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड. पॉलीन्यूक्लियोटाइड. और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से आपको मिलेंगे डीएनए या तो आरएनए आपको मिल सकता है.
ठीक है। अभी आप बात करोगे कि सर डीएनए और आरएनए में रिबोज शुगर है, पेंटोज शुगर जिसे आप बोलते हो, ये रिबोज शुगर दो टाइप की मिलेगी, या तो आपको मिलेगा रिबोज शुगर या तो डीऑक्सी रिबोज शुगर। डीएनए में होगा डीऑक्सी रिबोज शुगर, क्यों भाई? ये जो सेकंड पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन के कार्बन पे से अगर ऑक्सीजन निकल गया तो ये हो जाएगा डीऑक्सी रिबोज। सो डीएनए में क्या मिलेगा आपको? डीऑक्सी रिबोज शुगर, बराबर। ये तो ये देखिए, ये आपको दो रिबोज शुगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दे दिए, देखिए चलो ये वाला, ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, देखिए, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए सेकंड पोजीशन पे OH प्रेजेंट है यहाँ पे, ये हो गया हमारा रिबोज शुगर। ये देखिए बीटा डी रिबोज शुगर। मगर आप दूसरे पोजीशन पे यहाँ से H निकालते हो, देखिए यहाँ पे H निकल गया, ठीक है। अगर मैंने ये H निकाल सॉरी ऑक्सीजन निकाल दिया तो यहाँ पे सिर्फ H ही बचेगा। तो वी रिमूव the oxygen from the second position of ribose sugar, that is known as deoxyribose sugar। तो ये deoxyribose sugar हो जाएगा। This deoxyribose sugar is present in DNA and ribose sugar is present in RNA, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको डीएनए या तो आरएनए जैसा कोई न्यूक्लिक एसिड बनाना हो तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर आप देखोगे, तो उसके फॉर्मेशन के लिए सबसे पहला जो मेन कंपोजिशन होगा, जो वो होगा रिबोज शुगर। या तो वो हो सकता है डीऑक्सी रिबोज शुगर या तो रिबोज शुगर होगा, बीटा डी रिबोज शुगर या तो बीटा डी 2-डीऑक्सीरिबोज। 2-डीऑक्सीरिबोज इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो डीएनए में होगा बीटा डी 2-डीऑक्सीरिबोज शुगर, आरएनए में होगा बीटा डी रिबोज शुगर। अब ये शुगर साथ अगर नाइट्रोजन बेस कनेक्ट हो जाता है तो वो शुगर में से नाइट्रोजन बेस के साथ जॉइंट होने की वजह से हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, इन विच दैट नाइट्रोजन बेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हेट्रोसाइक्लिक बेस, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है एज ए हेट्रोसाइक्लिक एटम, रेडी, हेट्रोएटम। तो वो हो जाएगा बेसिक नाइट्रोजन बेस, क्योंकि उसे हेट्रोएटम, वहां पे नाइट्रोजन, हम देखेंगे आगे स्ट्रक्चर उसका, ठीक है। So that when nitrogen base is connecting with the first carbon, anomeric carbon of ribose, that is known as nucleoside. And when nucleoside react with phosphoric acid and forms nucleotide, क्योंकि phosphoric acid में जो phosphate होता है PO4-3, वो पांचवें कार्बन के साथ, यहाँ पे आप देखिए रिबोज या तो डीऑक्सीरिबोज में जब देखोगे तो पता चलेगा, जो पांचवा नंबर का कार्बन उसका जो OH है उसके साथ रिएक्ट कर लेगा फॉस्फेट बॉन्ड, फॉस्फेट फंक्शनल, और वहां पे डाइस्टर बॉन्ड बना देगा, वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। वो भी हम आगे देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ मिलकर, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे और बना देगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ribose sugar connect with nitrogen base, it will form nucleoside. When nucleoside will connect with the phosphate functional group, then it will produce nucleotide. And so many nucleotides are joined together and forms polynucleotide. And polynucleotide chains, two polynucleotide chains joined with each other by forming hydrogen bond with each other and forms helical structure which is known as deoxyribose sugar, DNA. रेडी, इससे आप न्यूक्लिक एसिड बना सकते हो। सबसे पहले ये पहला वाला जो शुगर के बेस का था, वो शुगर का वाला जो पॉइंट था वो आप देखिए सबसे पहले। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए और आरएनए यील्ड्स अ पेंटोज शुगर। आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको जो इनिशियल मोनोमर होगा वही मिलेगा, तो इसमें पेंटोज शुगर होता है, ठीक है। इसके बाद मिलेगा आपको फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि हमने लास्ट में न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए 3PO4 डाला था, देखिए यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया है, ठीक है। एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इट इज कॉल्ड बेस, नाइट्रोजन बेस। तो तीन मेन कंपोजिशंस है डीएनए और आरएनए में, एक पेंटोज शुगर, रिबोज शुगर, दूसरा वाला नाइट्रोजन बेस एंड तीसरा वाला फॉस्फोरिक एसिड। उसमें से फॉस्फेट बॉन्ड बना सकते हैं। In a DNA molecule, the sugar moiety is beta D 2-deoxyribose, whereas in RNA molecule it is beta D ribose। देखिए बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे रिबोज शुगर भी ड्रॉ करके दे दिया। आप अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, CH OH CH OH CH CH2H। आपको लगे सर नहीं मुझे फिशर प्रोजेक्शन से ड्रॉ करना है, काम कीजिए, ये H निकाल दीजिए, कार्बोनिल पे ज्वाइंट कर दो,
तो आपको ऐसा मिलेगा, देखिए CH OH आप लेफ्ट साइड ड्रॉ कर दो, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वाला कार्बन CHOH, CHOH, CH, यहाँ पे CH2OH, यहाँ वाला वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया हमारा हेमिएसिटाइल स्ट्रक्चर एज पर फिशर प्रोजेक्शन। तो आप अगर आप नंबर देना चाहते हो नंबर, तो नंबर दे देते चलिए। इसका नंबर आ जाएगा पहला, दूसरा, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। सो ये टोटल 5 नंबर थे। ये हो गया हमारा एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। ये हमारा एनोमेरिक कार्बन। तो ये फर्स्ट वन एंड फोर्थ वन, ये पहला और चौथा, ये दोनों कार्बन के बीच में एक साइकिल हो गया। तो आपको ये साइकिल कैसे देखने को मिलेगी? और हाँ, OH फंक्शनल ग्रुप, ये फिशर प्रोजेक्शन ना लेफ्ट साइड है एनोमेरिक कार्बन पे, तो बीटा हो गया। तो अब एक काम कीजिए, 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन को मिला के आप 5 मेंबर रिंग बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन था, उसमें OH लेफ्ट साइड है, तो हाउ थर्ड्स में ऊपर साइड होना चाहिए, H नीचे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH राइट साइड में है, तो हाउ थर्ड्स में नीचे की ओर आ जाएगा, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ठीक है। एज इट इज ऑन थर्ड कार्बन OH H, ऊपर फिफ्थ वन CH2 लिखेंगे हम, यहाँ पे H हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। दिस इज द फिफ्थ वन। इट इज अ ribose sugar. If we remove oxygen from the second position, then it is known as deoxyribose sugar, 2-deoxyribose sugar. बीटा, बीटा ये देखिए एनोमेरिक फॉर्म हो गया बीटा। क्यों भाई? क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर में एबोव द प्लान है, ठीक है। चलो अभी हमने बात की DNA और RNA जैसे न्यूक्लिक एसिड में कौन सा शुगर मोलिक्यूल है, कौन सा शुगर मोल्टी है, वो होगा रिबोस शुगर, पेंटोस शुगर, अल्डोपेंटोस। साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते तो बीटा डी, रिबोस इन आरएनए, बीटा डी, 2-deoxyribose इन डीएनए। लेट्स सी द अनदर पॉइंट। ओके, दूसरी बात, हमने रिबोस के बारे में देखा, अब हम देखने जा रहे हैं शुगर के बारे में। हेटेरोसाइक्लिक, mainly 5 different types of sugar, nitrogen bases are present in DNA. First one you can see here, adenine, cytosine, thymine, uracil. Actually you can see the basic structure of adenine, guanine looks similar, bicyclic, and the basic structure of cytosine, thymine and uracil, all of these 3 nitrogen bases have similar basic structure. So actually we can divide into 2 types of nitrogen base. First one, okay, so this is the purine base, and this is pyrimidine base. It is a basic structure of purine pyrimidine. So amongst the total 5 nitrogen base, all of these are nitrogen base because they are basic in nature, and as a heteroatom nitrogen is present, so it is known as a nitrogen base. Actually mainly 2 classified types of nitrogen base, purine base type and pyrimidine base type, in which adenine and guanine, both of this type of nitrogen bases are purine type nitrogen base, and pyrimidine type cytosine, thymine and uracil. These 3 different nitrogen bases are pyrimidine type. So mainly 5 different types of nitrogen bases are only based on purine types and pyrimidine types. So two nitrogen base are purine type, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो होगा प्यूरिन टाइप का। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। और दूसरे जो 3 होंगे, ये जो दूसरे 3 होंगे वो 3 होंगे साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। साइटोसिन, थायमिन एंड
यूरेसिल। साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल ये जो तीन है ये प्यूरिन टाइप के सॉरी पिरिमिडिन टाइप के बेस है, क्योंकि आपको देखिए इसका स्ट्रक्चर इनके जैसे कुछ मिलता है, ठीक है। तो दिक्कत ये होगी कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन सा वाला प्यूरिन स्ट्रक्चर है, कौन सा वाला पिरिमिडिन स्ट्रक्चर है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, नाम बड़े दर्शन छोटे। क्या? नाम बड़े दर्शन छोटे। अभी कौन सा नाम बड़ा है देखिए, ये प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। बड़ा नाम कौन सा दिखता है आपको? पिरिमिडिन। तो पिरिमिडिन नाम बड़ा हो गया, दर्शन छोटा हो गया, स्ट्रक्चर छोटा वाला है। इसका नाम छोटा है तो स्ट्रक्चर बड़ा वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए, नाम बड़े दर्शन छोटे। जिसका नाम बड़ा पिरिमिडिन, उसका दर्शन छोटा, तो सिंगल साइक्लिक फॉर्म होगा। तो इसके बेस क्या पिरिमिडिन पे और प्यूरिन और पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर आप याद रख सकते हो। इसमें से प्यूरिन बेस में कौन से दो नाइट्रोजन बेस आते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल आर पिरिमिडिन बेस। ऑलवेज जब आप डीएनए का मॉलिक्यूल देखोगे, डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर देखोगे, तो प्यूरिन जो होगा, प्यूरिन बेस होगा, एक डीएनए का जो प्यूरिन बेस होगा वो दूसरे डीएनए का पिरिमिडिन बेस के साथ ही कनेक्ट हो सकता है। मतलब एडेनिन और ग्वानिन है वो साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल के साथ कनेक्ट होगा। एडेनिन कभी भी ग्वानिन के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। साइटोसिन कभी भी थायमिन या तो यूरेसिल के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। एक बात आपके दिमाग में रखिएगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए और आरएनए ऑलवेज प्यूरिन टाइप नाइट्रोजन बेस विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ द अनदर pyrimidine टाइप नाइट्रोजन बेस ऑफ अनदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सपोज हमारे पास कोई एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे सपोज एक है एडेनिन, यहाँ पे है हमारे पास साइटोसिन, यहाँ पे है ग्वानिन, यहाँ पे थायमिन, ठीक है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है डीएनए का। डीएनए बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दूसरा वाला जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो सामने एडेनिन के सामने ग्वानिन आ सकता है, साइटोसिन के सॉरी एडेनिन के साथ थायमिन आ जाएगा, एडेनिन के साथ थायमिन होगा, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, थायमिन के साथ एडेनिन। तब देखिए ये एडेनिन है वो है हमारा प्यूरिन बेस, तो थायमिन है वो हमारा पिरिमिडिन बेस, साइटोसिन है वो हमारा पिरिमिडिन बेस है, तो ग्वानिन है वो प्यूरिन बेस है। यहाँ पे ग्वानिन है वो प्यूरिन बेस है, तो प्यूरिन है वो पाइरिमिडिन बेस है, और थायमिन है वो पिरिमिडिन बेस है, तो एडेनिन है वो प्यूरिन बेस है। देखिए मतलब एडेनिन के सामने थायमिन ही कनेक्ट हो सकता है, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन और थायमिन के साथ एडेनिन। यही कनेक्टिंग सिस्टम है डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है उसके बीच में। एक ही बात याद रखनी है आपको, प्यूरिन के साथ पिरिमिडिन बेस कनेक्ट होगा डीएनए के स्ट्रक्चर में, तो एडेनिन के साथ या तो थायमिन कनेक्ट होगा या तो यूरेसिल कनेक्ट हो सकता है। कैसे कनेक्ट होगा वो देखिए। और ग्वानिन के साथ सिर्फ एक ही कनेक्ट हो सकता है, वो है साइटोसिन। तो आप सोचोगे कि सर एडेनिन के साथ कब थायमिन आएगा, कब यूरेसिल आएगा? देखिए ये होगा डीएनए में। डीएनए जब आप देखोगे तो एडेनिन के साथ थायमिन कनेक्ट होगा, और ये होगा आरएनए में। आरएनए में थायमिन नहीं मिलता, उसमें यूरेसिल ही होता है। डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, उसमें थायमिन होता है। तो एडेनिन के साथ यूरेसिल कनेक्ट हो जाएगा आरएनए में। तो देखिए अब वन बाय वन हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उससे पहले हम सिर्फ ये नाइट्रोजन बेस कौन सा वाला ये देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो द डीएनए कंटेन्स 4 बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। डीएनए में 4 बेस है टोटल। आप बोले कि सर आपने बोला 5 टाइप का, 5 टाइप है, इसमें से 4 डीएनए में है और दूसरे और 4 आरएनए में है। आरएनए और डीएनए में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, आरएनए में यूरेसिल है, थायमिन नहीं है। डीएनए में थायमिन है, यूरेसिल नहीं है, ठीक है। In RNA also contain 4 bases. The first 3 bases are same in DNA, but fourth one is uracil in place of thymine. Clear? तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन बेस। तो हमने 2 पॉइंट देख लिए, पेंटोज शुगर इन न्यूक्लिक एसिड एंड बेस, हेट्रोसाइक्लिक बेस। बच्चों ये बेस होगा वो ऑलवेज जब रिबोज शुगर के साथ कनेक्ट होगा तो वो जो एनोमेरिक कार्बन था पहला वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो प्यूरेनो स्ट्रक्चर था, ठीक है,
वो फ्यूरेनो स्ट्रक्चर के पहले कार्बन के साथ ही ये नाइट्रोजन बेस कनेक्ट हो जाएगा। और जब ये नाइट्रोजन बेस पहले कार्बन पे कनेक्ट होता है रिबोज शुगर के, तो वो जो टोटल मोइटी होगा वो हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड से आगे बनाए गए न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बनाने के बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड देन आफ्टर डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अवर नेक्स्ट पॉइंट। ये देखिए कैसे न्यूक्लियोसाइड बनता है हम वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास कोई एक नाइट्रोजन बेस है। सपोज आप सोच लो प्यूरिन बेस लेते हैं, ग्वानिन या तो एडेनिन। सपोज मेरे पास ये पेंटोज शुगर है। ठीक है, फ्यूरेनोज टाइप स्ट्रक्चर, ये देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया फ्यूरेनोज टाइप स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पे और अरेंज करते हैं। सबसे पहले ये तो हमारा एनोमेरिक कार्बन था, ऊपर था OH, नीचे था H। हम डीएनए बनाते हैं बच्चों, तो यहाँ से सेकंड पोजीशन पे एक ऑक्सीजन निकाल देते हैं। यहाँ पे H, OH, CH2, OH and H, and let's give the number to the carbons of the cyclic ribose sugar. First carbon, it is second carbon, third one, fourth and fifth. Now suppose we have nitrogen base, we use your nitrogen base and base ऐसे ही लिखते थे। नाइट्रोजन बेस में कोई भी हो सकता है, एडेनिन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, थायमिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा जब नाइट्रोजन बेस होगा तो नाइट्रोजन बेस का हाइड्रोजन होगा, इसके OH के को रिमूव करके यहाँ पे नाइट्रोजन बेस कनेक्ट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट कार्बन जो था वहां पे नाइट्रोजन बेस कनेक्ट होगा। ठीक है, ये हो गया और यहाँ से OH निकल गया। तो जो एनोमेरिक कार्बन था ये फर्स्ट वन, ये था एनोमेरिक कार्बन। ये जो एनोमेरिक कार्बन था बेस का, उसके फर्स्ट कार्बन पे से OH निकल के वहां पे कनेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन बेस। सो नाइट्रोजन बेस connect with the first carbon of pentose sugar, beta D 2-deoxyribose sugar, right? Then we form nucleoside, clear? And then after when a nucleoside connect with the react with the phosphoric acid and forms nucleotide। तो पहला न्यूक्लियोसाइड बना दिया, अभी हम बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। वो कैसे बनाएंगे वो हम देखते थे। देखिए बच्चों, अगर हम फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें से जो फॉस्फेट बॉन्ड बनेगा PO4-3, वो हो जाएगा P डबल बॉन्ड O फॉस्फेट आयन। वो पांचवें नंबर का जो कार्बन है उसके साथ डाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। कैसे बनाता है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमने बना लिया न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो कैसे न्यूक्लियोसाइड बनता है वो हम देखते चलो। A unit formed by the attachment of base to 1' position of sugar। यहाँ पे देखिए, इसे यहाँ पे 1' दे दिया हमने, 1 दिया था, यहाँ पे 1' दे दिया। ठीक है, on the 1' position of sugar base is connected here on the first position, that is known as nucleoside। so ये वाला हो गया कौन सा, न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे आरएनए बना रहे हैं। देखिए क्यों आप मुझे कैसे पता चला आरएनए बना रहे हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब ये डीऑक्सीरिबोज नहीं है, सिर्फ रिबोज शुगर। और रिबोज शुगर है तो वो आरएनए ही बनाएगा ना, कि डीऑक्सीरिबोज डीएनए बनाने के लिए डीऑक्सीरिबोज चाहिए। ओके, तो जो फर्स्ट पोजीशन में नाइट्रोजन बेस कनेक्ट हो गया, जैसे यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोसाइड। अभी क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं फॉस्फेट कनेक्ट करता हूँ PO4 फॉस्फेट, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो PO4 है यहाँ पे H3PO4 अगर मैंने यूज किया, H3PO4 का एक H और यहाँ का OH, पांचवें नंबर से OH निकल जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए ये PO4 है, P यहाँ पे O- लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डबल बॉन्ड O एंड O, and then after CH2, H, OH, H। अब डीएनए के लिए बात करते हो तो अब मैंने ऐसा किया, यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट किया था, बेस।
यहाँ पे था हमारा नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले कैसे न्यूक्लियोसाइड बना और कैसे न्यूक्लियोटाइड बना? कुछ नहीं करना है, रिबोस शुगर ले लो। रिबोस शुगर के फर्स्ट पोजीशन वाले जो कार्बन है उस पे OH होगा अबोव द प्लांट, बिकॉज इट इज अ बीटा ribose sugar, beta D ribose sugar, and substitute the OH functional group of the first position of ribose sugar by nitrogen base, then we produce nucleoside. It is a nucleoside. And where is this nucleoside react with phosphoric acid, then lose H2O molecule, hydrogen from phosphoric acid and OH from the fifth carbon of nucleoside, then it will produce the phosphodiester bond. Phosphodiester bond, ready, and it is known as nucleotide. Actually ये जो bond होगा वो एस्टर जैसा दिखेगा आपको। कैसे दिखता है वो फॉस्फोडाइएस्टर, कैसे बोला जाता है वो मैं भी आपको बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। मगर ये हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। ये तो सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये हो गया बी वाला स्ट्रक्चर होगा जो होगा हमारा न्यूक्लियोटाइड। ये देखिए बी इज न्यूक्लियोटाइड एंड ए इज न्यूक्लियोसाइड। अब ये तो सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड है। अभी ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ ज्वाइंट हो जाएगा और बना देगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कैसे बनाता है वो हम देखते हैं, उससे पहले ये एक बार हम रीड कर लेते हैं। चलो, इन न्यूक्लियोसाइड्स द शुगर कार्बन्स आर नंबर्ड एज 1 2 3 etc. In order to distinguish this from the base, when the nucleoside is linked to phosphoric acid, 5' position of sugar moiety the nucleotide। मतलब अगर आप फॉस्फेट को फिफ्थ वाले पोजीशन पे कनेक्ट करते हो तो हमें न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा। रेडी, तो न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज व्हेन 5' and 3' कार्बन एटम्स ऑफ द पेंटोज शुगर। ठीक है, जब ये न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ 3' and 5' पोजीशन पे जॉइंट हो जाते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड में से बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। रेडी, दो न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होते हैं तो हो जाएगा डाइन्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होते हैं तो हो जाएगा ट्राइन्यूक्लियोटाइड। सो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय 3' and 5' पोजीशन, दैट इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कैसे बनेगा ये डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइन्यूक्लियोटाइड वो हम देखते हैं आगे। मगर ये देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। हमें क्या बनाना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कैसे डाइन्यूक्लियोटाइड बनता है। चलिए ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे दिया। चलो ये जो नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, ये हमारा था एनोमेरिक कार्बन, फर्स्ट कार्बन। ये था सेकंड वाला, ये था थर्ड वन, दिस वन इज फोर्थ वन कार्बन, दिस इज द 5 कार्बन। इफ बी डिनोटेड बाय 1', 2', 3', 4' and 5', right? So you can see the phosphate bond is connected on the 5th dash position, so it is nucleotide here। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे OH लिख देते हो तो ये हो जाएगा हमारा रिबोज शुगर, तो इससे मिलेगा हमें RNA। अगर हम यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन निकाल के सिर्फ हाइड्रोजन ही लिखते हैं, ठीक है, तो हमें मिलेगा डीऑक्सीरिबोज शुगर, तो उससे बन सकता है DNA। मगर यहाँ पे मैंने अभी कुछ नहीं लिखा, मतलब आप RNA के लिए, DNA के लिए, दोनों के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, 2' as it is you can use your number 1', 2', 3', 4' and 5'. Both of these are nucleotides. You can see this phosphorus। एक्चुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड है यहाँ पे थोड़ा सा गलत पोर्शन, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ कनेक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ, ये डबल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिए आप। यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस निकाल दो, ये डबल बॉन्ड होगा और ये होगा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। अभी तो ऐसे कहीं कनेक्ट होगा, अब ये क्या होगा, ये फॉस्फोरस होगा वो कनेक्ट हो जाएगा
थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे ये थर्ड पोजीशन पे कनेक्ट हो गया। देखिए तो अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ये ऑक्सीजन है, वो जो हमारा पेंटोज शुगर है CH2, यहाँ पे फॉस्फेट और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है वो फॉस्फोरस, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पे O, और ये जो है वो CH2, ऐसा कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, ठीक है। चलो तो ये कौन सा वाला पोजीशन था, 5 ये ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का कौन सा पोजीशन था, 3 ये 3 देखिए, ये 5 देखिए। तो कहाँ मैंने देखा, बताया आगे आगे के पॉइंट में क्या देखा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन 5 एंड 3 कार्बन एटम ऑफ पेंटोज शुगर। ये देखिए यहाँ पे 5 एंड 3 ये हो गया 3 वाला कार्बन, ये हो गया 5 वाला कार्बन, इन दोनों के बीच में एक लिंकेज हो गया, ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा। क्यों भाई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, देखिए हम देखिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक O कनेक्ट हो गया, तो ये हो गया हमारा एस्टर, हम इसे एस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बन के बजाय हम यहाँ पे फॉस्फोरस अरेंज करते हैं, ये हो गया O, तो हम इसको फॉस्फोएस्टर बोल सकते हैं। मगर यहाँ से भी कनेक्ट हो गया, देखिए ये फॉस्फोरस 2 पोजीशन पे कनेक्ट है, एक यहाँ से भी कनेक्ट हो रहा है, देखिए आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये 5th पोजीशन पे ये ऑक्सीजन कनेक्ट है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन कनेक्ट है। तो आप देखिए यहाँ पे दोनों साइड से एस्टर लग रहा है, तो ये हो जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो दिस बॉन्ड इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। सो इफ 2 nucleotides are joined together then it will form dinucleotide। तो ये तो सिर्फ 2 ही न्यूक्लियोटाइड थे, ऐसे आप बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन करते जाओ, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन करते जाओ तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। देखिए ये हो गया हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखिए ये जैसे हम चेन बनाते गए ऐसा एक चेन बन गया और यहाँ पे हो जाएगा बेस। ये देखिए यहाँ पे बेस आ गया ना, हमने ये बेस मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए एक बेस यहाँ पे सुनिए, ठीक है, एक बेस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक बेस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अभी मेरे पास ऐसा कोई दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी है, देखिए ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 2, सेकंड वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा वाला, ये पहला वाला। तो अब यहाँ पे भी नाइट्रोजन बेस होगा, जैसे ये जो नाइट्रोजन बेस है वैसे ही ये नाइट्रोजन बेस, इसके मैंने लेफ्ट साइड में दिखा दिया, ये बेस होगा, यहाँ पे सामने मैंने बेस रखा है, यहाँ पे भी मैं बेस रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी बेस लिखता हूँ। तो ये हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड्स है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो क्या होगा, ये दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे हेलिकल फॉर्म। कैसे ज्वाइंट होंगे, कैसे मर्ज हो सकते हैं, तो देखिए इसमें अगर सपोज हम डीएनए बनाते हैं, सपोज ये नाइट्रोजन बेस है वो होगा हमारा एडेनिन सपोज, और ये है सपोज ग्वानिन, ये है सपोज साइटोसिन, और ये सपोज थाइमिन। तो सामने वाला जो बेस होगा वो होगा एडेनिन के सामने आ जाएगा ऑलवेज थाइमिन। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये है जो एडेनिन है वो प्यूरिन बेस है, तो उसके सामने कोई पिरिमिडिन बेस आएगा। हम डीएनए बनाते हैं, सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डीएनए बनाना शुरू किया, तो यहाँ पे आ जाएगा थाइमिन। ग्वानिन है जो प्यूरिन है उसके सामने पिरिमिडिन बेस आएगा, वो ऑलवेज आ जाएगा साइटोसिन। साइटोसिन है तो उसके सामने साइटोसिन और पिरिमिडिन बेस है, तो उसके सामने आएगा ग्वानिन जो होगा प्यूरिन बेस, और ये थाइमिन है तो यहाँ पे आ जाएगा एडेनिन। मतलब जब 2 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं तो प्रॉपर पैटर्न के साथ ही लिंकेज दिखाएंगे, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड का अगर नाइट्रोजन बेस प्यूरिन टाइप का है तो उसके सामने पिरिमिडिन टाइप का बेस ही आने वाला है। ये कोई चेंज नहीं हो सकता। अगर कुछ चेंज हो गया तो उसमें जेनेटिकल डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं, और जेनेटिकल डिसऑर्डर होने की वजह से उसमें कुछ डिसीज भी हो सकती है, ठीक है। विकलांग जैसे हम बोलते हैं, विकलांग बन सकते हैं, मेंटली भी डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ठीक है, तो ये बात है कि एक न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड जब ज्वाइंट होगा तो उन दोनों के बीच में कुछ बॉन्ड बनेंगे। ये बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। एक न्यूक्लियोटाइड में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो
जो प्यूरिन बेस होगा तो सामने वाले उसके साथ जो ज्वाइंट हो रहा है उसका न्यूक्लियोटाइड होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसमें प्यूरिन बेस होगा। एक का प्यूरिन बेस, एक का pyrimidine बेस, एक का pyrimidine बेस, दूसरे वाले का प्यूरिन बेस फिक्स होता है। डीएनए होगा तो डीएनए में देखिए, डीएनए में एडेनिन के सामने थाइमिन ही होगा और वो एक दूसरे के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इन दोनों के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और ग्वानिन होगा तो उसके सामने साइटोसिन होगा और उन दोनों के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये देखिए, दिमाग में रखिए आप। तो अगर ये मेरे पास और एडेनिन है तो एडेनिन के साथ यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। और जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो चेन एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएगी तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, अंदर की ओर ये जो बॉन्ड हो जाएगी, यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगी, ठीक है। ये बॉन्ड कौन से होंगे, ये वाले, ये बॉन्ड होंगे। तो अंदर की ओर कौन होगा, बेस होगा। ये जो आप चेन देखोगे ये, ठीक है। तो ये अंदर की ओर बेस हो गए, बाहर की ओर ये देखिए, ये एक साइड अंदर की ओर बेस है तो बाहर की ओर फॉस्फेट है, तो यहाँ पे बाहर की ओर फॉस्फेट बॉन्ड हो गए, अंदर की ओर है वो नाइट्रोजन बेस हो। ये डीएनए का कॉमन स्ट्रक्चर है जो बायोलॉजी में भी शायद पढ़ रहे होंगे जो बी ग्रुप के स्टूडेंट है, मगर आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि डीएनए में सबसे पहले एक रिबोज शुगर होगा। वो रिबोज शुगर या तो डीऑक्सीरिबोज होगा या तो रिबोज शुगर होगा, aldose शुगर। साइक्लिक फॉर्म होगा, वो फ्यूरेनोस टाइप का होगा, उसके साथ एक नाइट्रोजन बेस जॉइंट हो जाएगा, बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। वो नाइट्रोजन बेस फर्स्ट कार्बन पे कनेक्ट होता है। अब वो न्यूक्लियोसाइड में 5वें नंबर पे कार्बन पे जब फॉस्फेट कनेक्ट हो जाएगा तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अभी एक न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट है 5th पोजीशन पे कनेक्ट है, वही फॉस्फेट दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3rd पोजीशन पे कनेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है, ठीक है, 3rd पोजीशन पे कनेक्ट हो जाएगा। तो तभी ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सबसे पहले रिबोज शुगर, उस पर नाइट्रोजन बेस बिठा दो, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के 5वें कार्बन पर फॉस्फेट बिठा दो, न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के 5वें पोजीशन पे जो फॉस्फेट होगा वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3रे पोजीशन पे कनेक्ट हो जाएगा। तो जो लिंकेज होगा वो लिंकेज होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड मिल जाएगा हमें डाइन्यूक्लियोटाइड। जैसे तीसरा ऐड कर दो, फिर 5 थर्ड पोजीशन, 5 थर्ड पोजीशन, 5 थर्ड पोजीशन ज्वाइन करते जाओ, न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के सामने दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जुड़ जाएगा तो बन जाएगा डीएनए, ठीक है। तुमने ये बात देख लिया कैसे डीएनए बनता है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ग्वानिन के सामने साइटोसिन के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडेनिन के साथ थाइमिन दे दिया, थाइमिन के साथ एडेनिन, एडेनिन के साथ थाइमिन, ये हो गया हमारा डीएनए। कुछ एक बात याद रखो, आपको दिमाग में सब फॉस्फेट बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे बाहर की ओर फॉस्फेट हो जाएगा, अंदर की ओर नाइट्रोजन बेस, बाहर की ओर फॉस्फेट, बाहर की ओर फॉस्फेट, यहाँ पे बाहर की ओर फॉस्फेट आ जाएगा, पी मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे, बाहर की ओर फिर फॉस्फेट होगा, अंदर की ओर होगा नाइट्रोजन बेस। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। आप सिंप्लीफाइड वर्जन देखोगे, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेन इन शो इज शोन बिलो। ये देखिए शुगर के साथ क्या कनेक्टेड होगा, बेस, और शुगर के दूसरा कौन होगा, फॉस्फेट, वो दूसरे शुगर के साथ कनेक्ट होगा। ये शुगर का C5 होगा ना, तो ये शुगर का C3 होगा। अब ये शुगर का C5 होगा तो ये शुगर का C3 होगा, ठीक है। शुगर के साथ कौन होता है कनेक्ट, बेस, और बीच में होगा एक शुगर, दूसरे शुगर के मॉलिक्यूल के बीच में कौन होगा, फॉस्फेट। देखिए आप आगे, ये एक शुगर और दूसरे शुगर मॉलिक्यूल के बीच में कौन आता है, फॉस्फेट। तो हर एक शुगर मॉलिक्यूल को ज्वाइंट कौन करेगा, फॉस्फेट, ठीक। सो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग the sequence of nucleotide in the chain of nucleic acid is called its primary structure। तो ये जो है वो न्यूक्लिक एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। न्यूक्लिक एसिड हैव अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक gave a double strand helix structure of DNA। ये जो डीएनए है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। रेडी टू सेकेंडरी, क्योंकि सिंगल एक स्ट्रक्चर हो ना, सिंगल एक हेलिकल फॉर्म होगा तो वो हो जाएगा प्राइमरी।
मगर ऐसे ये दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होके ऐसा हेलिकल फॉर्म्स बनाते हैं तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मगर आगे बढ़ते हैं। Two nucleic acid chains are wound about each other, wound हो जाए, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, each other and held together by hydrogen bonds between pair of base। पहला कौन सा पेयर बताया मैंने आपको? डीएनए होगा, तो डीएनए में एक होगा प्यूरिन बेस, तो सामने होगा pyrimidine बेस। प्यूरिन बेस में अगर एडेनिन है तो सामने pyrimidine डबल बॉन्ड से हो जाएगा थाइमिन। यहाँ पे गुआनिन है तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा साइटोसिन। अभी आरएनए में हम बात करते हैं तो आरएनए में प्यूरिन बेस के सामने pyrimidine बेस ही होगा। प्यूरिन बेस अगर एडेनिन है तो सामने डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा यूरेसिल, और गुआनिन है तो साइटोसिन। ये दोनों तो फिक्स है, गुआनिन साइटोसिन दोनों में डीएनए आरएनए में सिर्फ चेंज एक ही होगा, डीएनए में थाइमिन है और आरएनए में यूरेसिल है। बाकी गुआनिन साइटोसिन एडेनिन तीन दोनों में कॉमन होगा। देखिए, the two strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are formed between specific pair of base। specific pair of base पहले ही बोला, specific pair है। एडेनिन के साथ डीएनए में थाइमिन ही होगा, कभी भी साइटोसिन नहीं होगा। और आरएनए में एडेनिन के साथ यूरेसिल ही होगा। जब गुआनिन के साथ साइटोसिन ही होगा, स्पेसिफिक पेयर होगी नाइट्रोजन बेस की। Adenine forms hydrogen bonds with the thymine, whereas cytosine forms hydrogen bond with guanine। ठीक है, मगर एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन एडेनिन and thymine in DNA structure as it is similarly in RNA structure। But guanine and cytosine forms triple hydrogen bonds between them in DNA और RNA। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, अभी आरएनए में क्या होगा कि आरएनए में बनाना है तो आपको एक ही ये जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो खुद ही अपने आप वाउंड हो जाएगी एक दूसरे के साथ ज्वाइंट के। दूसरे दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड नहीं, एक ही न्यूक्लियोटाइड कोई पोजीशन से रिटर्न आके और वो हेलिकल फॉर्म बना देगा। तो देखिए, इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए हेलिक्स आर प्रेजेंट व्हिच आर ओनली सिंगल स्ट्रैंड, sometimes they fold back on themselves। मैंने बताया सिंगल स्ट्रैंड होगा, सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, मगर कभी कभी वो खुद अपने आप ही वो रिटर्न होके आपको हेलिकल फॉर्म देगा। ठीक है, सो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, back to themselves to form a double helix structure। RNA molecules are 3 types, they perform different functions: messenger RNA, ribosomal RNA and transfer RNA। messenger RNA हो मैसेज कन्वे करते हैं, रिबोसोमल RNA जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज होते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मर RNA जो ट्रांसफर RNA है वो ये जो मैसेज है वो मैसेज कन्वे करते हैं। ट्रांसफर RNA है वो मैसेज को कैसे प्रोटीन सिंथेसिस करना है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आरएनए का वर्क फंक्शन है वो स्पेसिफिकली अलग है एक दूसरे से। वो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस हमें नहीं करना है क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में इसके बारे में कुछ आगे पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है। हाँ, बायोलॉजी में अगर बायोमोलिक्यूल पढ़ते हो तो आपको आरएनए के बारे में आपको ज्यादा ही पता होगा। नाउ, बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। So what is the biological function? DNA is the chemical basis of heredity and may be regarded as the reserve of genetic information। हेरिडिटी मैंने पहले ही बताया कि आपके हर एक पीढ़ी में, आपके हर एक जनरेशन में आपका जो नेचर होगा वही हर एक जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि हेरिडिटी की वजह से, डीएनए की वजह से, क्योंकि वो क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसे रिजर्व करते हैं। इट इज नोन एज जेनेटिकल। नाउ, DNA is exclusively responsible for maintaining the identity of different species of organisms over million of years। over million of years, सोचिए
मिलियंस ऑफ ईयर्स की तरफ, उसमें कोई हार्ड डिस्क नहीं है, उसमें कोई माइक्रोचिप्स नहीं है, फिर भी आपकी जो प्रॉपर्टीज है उसे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक मेंटेन रखते हैं, उसे रिजर्व रखते हैं। तो आपकी जितनी भी जनरेशन आएगी उन सभी में आपकी प्रॉपर्टी देखने को मिलती होगी, और आप में भी आपके जो दादा परदादा होंगे उसकी भी प्रॉपर्टी, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक जो आपको देखने को मिली, आपने देखने को मिलती होगी। या तो लुक वाइज होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, आपका कुछ कैरेक्टर कुछ ऐसा होगा, जो भी होगा वो सब आपके जो दादा परदादा है उसकी देन है, और आप अपनी जनरेशन में, आगे की जनरेशन में आप ही ट्रांसमिट करोगे, ठीक है, ड्यू टू डीएनए। सो अ डीएनए molecule is capable of self duplication during cell division, and identical DNA strands are transferred to daughter cells। मतलब देखिए बच्चों, सेल डुप्लीकेशन में सपोज एक डीएनए है और दूसरा डीएनए है, ये दूसरा डीएनए एक डीएनए के साथ जब ज्वाइंट होगा, सपोज ये मदर का डीएनए फादर का डीएनए, जैसे हम बोलते हैं मदर फादर, तो ये जब एक दूसरे के साथ होगी, डुप्लीकेशन होगा, तो क्या होगा, डुप्लीकेशन के दौरान कुछ ऐसा होगा। तो यहां से अगर कट हो जाएगा तो ये जो तीसरा जो होगा, इसमें जो प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी ये इन दोनों के जैसे ही मिलेगी, क्योंकि जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो कन्वे हो जाएगी, ठीक है, डॉटर्स के डीएनए में, ठीक है, तो ये डॉटर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। चलो, another important functions of nucleic acid is the protein synthesis in the cell। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी यूज होते हैं, मगर क्या करेगी, एक्चुअली द प्रोटीन सिंथेसिस करना वर्क होता है आरएनए का, मगर ये कैसा प्रोटीन सिंथेसाइज करना है उसके बारे में मैसेज देते हैं, ठीक है। एक्चुअली द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल्स in the cell, but the message for the synthesis of particular protein is present in DNA। ठीक है, चलो बच्चों, आज हमने डीएनए के बारे में भी पॉइंट देख लिया, मतलब टोटल बायोमोलिक्यूल चैप्टर कंप्लीट कर लिया। हमने जितने टॉपिक एनसीईआरटी में थे पूरे के पूरे नहीं पढ़े, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो गुजरात बोर्ड ने डिलीट कर दिए, तो जितने इंपॉर्टेंट थे जो पूछे जा सकते हैं वो सभी के सभी देख लिए। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। रेडी? तो टिल दैट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।